Hello and welcome again here. It will be a video lecture for our 12th class students. In the very previous lecture, we discussed about the spherical mirrors and also its types. And also we see the points related with them. Now, moving forward to that, we will see the sign conventions. Sign conventions are simply the set we make for signs like that of image distance, object distance, focal length or radius of curvature. When we have to measure these things, we use signs for them. We use signs for them. So let's here see what are the sign conventions. साइन कन्वेंशन को देखने से पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए। वैसे ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखते हैं। वी ऑलवेज पुट ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। इट्स ओनली फॉर आवर कन्वीनियंस, इट्स नॉट नेसेसरी। वी कैन ऑल्सो पुट द ऑब्जेक्ट in right direction, in right of the mirror, and place mirror like this and put the object here. मिरर जो मिरर के राइट में भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट वी ऑलवेज यूज दिस। अपनी सहूलियत के लिए, अपनी आसाइश के लिए हम कह सकते हैं ये वाला यूज करते हैं, वरना ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला यूज कर लेंगे। अगर हम कहेंगे ये कर्वेचर है, दिस इज फोक्स, दिस इज पोल, ऑल दिस वी हैव रेड अबाउट। दिस इज द focal length, from this to this it is a radius of curvature, and from object to mirror it's object distance. Object distance we denote it with small letter u. We denote it with small letter u. And anywhere where the image is formed, for example image is formed here, this will be image distance v. Image distance, that is v, also small letter v. Height, this, if this is a, this is b, ab is the height of object, or you can say size of object. Height of object, we will write h, or we can use h1, whatever. And height for image, or height of image, sorry, we will use h1. So this is a dash b dash, image formed, we can say it's h1 and it is h. So all this we have to remember. Okay, now we will go to sign conventions. When the u will be positive, when it will be negative, when v will be positive, negative, f, all these things. For that we use sign conventions. For these we use sign conventions. First sign convention, I will write the points here and we will discuss point wise. First point, all the distance is measured from pole. First sign convention which we have to remember, that is all the distance are measured from pole, or all the distance is measured from pole.
जो कोई भी डिस्टेंस हम लेंगे, whether it will be object distance, whether it will be image distance, whether it will be focal length, radius of curvature, जो कोई भी डिस्टेंस लेंगे, we will start with from pole. So our scale, the zero of our scale will be on pole. स्केल जो भी होगी हमारी, उसका जीरो जो होगा वो कहाँ पे रहेगा? पोल पे रहेगा. सो पोल विल बी आवर इनिशियल पॉइंट और वी कैन से स्टार्टिंग पॉइंट. फिर पोल की इस तरफ जाएंगे मेजर करने के लिए, पोल की इस तरफ जाएंगे मेजर करने के लिए, वो अलग बात है. ठीक है, बट आवर इनिशियल पॉइंट दैट विल बी पोल. ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल. नाउ द सेकंड पॉइंट, look at here, this is object. Okay, what is object? Object is the one that emits light. Object वो है जो लाइट को emit करता है, जो लाइट को emit करता है. और वो लाइट जो होती है, उस लाइट रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं. क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं. तो हम सिंपली ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलेगी. ऑब्जेक्ट से क्या निकलेगी? इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे ये निकली, मिरर पे पड़ेगी यहाँ पे. ठीक है, सो हम ये कहें कि ये किस डायरेक्शन में गई? इट्स गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट्स गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू, मिरर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? राइट में है कि लेफ्ट में? मिरर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ये लेफ्ट है, लेफ्ट में है कि राइट में? ऑब्वियसली इट्स इन लेफ्ट साइड. ठीक है, तो इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे लेफ्ट से आके कहाँ जा रही है? राइट की ओर. देख लो, लेफ्ट से आके राइट की ओर जा रही है, क्योंकि मिरर जो है, मिरर इज इन राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मिरर इज इन राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. दिस इज इंसिडेंट रे. Now, on the direction of incident ray, we will make the sign convention. We will remember, or we can make the sign convention. Now look here. The distance is measured along the direction of incident ray will be taken as positive and opposite to its direction will be taken as negative. First we have to see the direction of incident ray. Direction of incident ray is this. Okay, now if we are going to measure the distance along the direction of incident ray, but from where? From pole. From pole. अब अगर पोल से हम इस तरफ चले गए, पोल से अगर मैं इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाऊं तो ऑब्वियसली ऐसे जाएगी. अगर मैं इसको आगे बढ़ाते जाऊंगा तो ये इसकी डायरेक्शन है. ठीक है, तो अगर मैं पोल के इस तरफ जाऊंगा, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे भी है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो आई विल टेक द वैल्यू पॉजिटिव. आई विल टेक द वैल्यू पॉजिटिव. वो मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा. वो इमेज डिस्टेंस होगी, फोकल लेंथ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जो कोई भी होगा वो पॉजिटिव होगा. अगर मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं फ्रॉम द पोल, अगर मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं along the direction of incident ray, then the value will be positive. इसका उल्टा कन्वर्स कर लो. अब अगर इसके अगेंस्ट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में जाऊंगा तो वैल्यू क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा. Okay, so this is the second convention.
we have to remember. Now third one, we will see third one. If the heights are taken in upward direction, if the heights are taken in upward direction perpendicularly to the principal axis, then it will be taken as then it will be taken as positive. And if in downward direction, then it will take it will be taken as negative. अब हाइट्स की बात है, अगर ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट अगर इनको अपर डायरेक्शन में लेंगे, बट इट शुड बी परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अपर डायरेक्शन में हम चले गए इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट निकालने के लिए, अगर अपर डायरेक्शन में गए तो वैल्यू क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे. और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड में चले गए, क्योंकि इमेज जो है वो कभी इरेक्ट बनती है कभी इन्वर्टेड बनती है, उसका खास ख्याल रखना है. जैसे यहाँ पे रियल इमेज बनी डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव. प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड में है, सो इट विल बी टेकन एज. So these are the sign conventions which we have to remember. Especially this is very much important in numericals. जब कनकेव या कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स करते हैं उस दौरान ये इस चीज का खास ख्याल रखना पड़ता है. इस चीज का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है. जब न्यूमेरिकल्स कर लेंगे वहां पे भी इसको देख लेंगे. So now let's move on to other topic, that is relation between radius of curvature and focal length. Relation between radius of curvature and focal length, ये रिलेशन ठीक है. पहले हम डायग्राम बना लेंगे. एक जनरल डायग्राम बना लेंगे हम. This is normal, this is angle of incidence, this is angle of reflection, like this. मैंने एक ही रे बनाई, इसी पे हम देख लेंगे. This is F, this is P. अच्छा बताओ, what is this distance called?
we know it's F. Okay, and what is this distance? It will be R, radius of curvature. पढ़ा है हमने, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं लाइक दिस। चलो यहाँ पे नाम एक रख लेंगे, ABCD, चलो D नाम रख लेंगे, D नाम रखा हमने यहाँ पे। मुझे बताओ AB, दिस इज CD, मुझे बताओ एंगल ADB कितना है? दैट्स एंगल I। ये इसी तरह एंगल CD, चलो F, दैट्स एंगल R, एंगल I, एंगल R, ये चीज हमें पता है। इफ दिस इज I, हाउ मच इज दिस एंगल? दिस एंगल विल बी इक्वल टू I, ये भी I के बराबर होगा। कैसे होगा देख लो, ये एक जो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और ये जो डॉटेड लाइन है, दिस इज ट्रांसवर्स बिटवीन देम एज पर ज्योमेट्री, एज पर मैथमेटिक्स। ये एंगल यहां पे अगर एंगल I है, ये एंगल अगर यहाँ पे I है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा? बिकॉज दे आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, या यूं कह सकते हैं दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। So if this is I, this will be also equal to I. Also angle DCP और F जो भी कहेंगे, it's equal to angle I. Alternate interior angles. Alternate interior, ये चीज याद रखो। Now this is angle I, this is angle R, this is angle I, this is angle R. In triangle CDF, गौर से देखो ट्रायंगल CDF, angle I is equal to angle R, angle I is equal to angle, क्योंकि अगर इंसिडेंट एंगल ये है तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। As per law of reflection, these two angles are equal. Law of reflection भी कह सकते हैं यहाँ पे, this is law of reflection, ठीक है। एंगल I is equal to angle R। अब देख लो इस ट्रायंगल के अंदर दो अपोजिट एंगल्स इक्वल है, दो अपोजिट एंगल्स, ये और ये एंगल इक्वल है। दैट मीन्स दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कौन सी है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका क्या मतलब है? CF और FD, ये दोनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये दोनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। Therefore triangle CDF is isosceles triangle। isosceles triangle कौन सी ट्रायंगल है ये? जब isosceles triangle है तो CF side CF will be equal to FD, CF side will be equal to FD side। ये चीज याद रखो, ठीक है। नाउ मुझे एक चीज बताओ, CP कितना है? CP, हाउ मच इज दिस? दिस इज R, दिस इज R। हियर CP is equal to R, ओके। अच्छा बताओ CD कितना है? यहां पे ध्यान दो, CP is R, CD how much is this? This will be equal to R also, ये भी R क्यों? क्योंकि C जो है एक स्फीयर का ये सेंटर है
व्हाट वी कॉल सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये सेंटर से सरफेस तक जो भी डिस्टेंस हम लेंगे दैट विल बी इक्वल। सेंटर से सरफेस तक जो कोई भी डिस्टेंस हम लेंगे वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो इफ सी पी इज आर, व्हाट विल बी सी डी, इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू आर। अगर हम कहेंगे ये रेडियस है स्फीयर का, तो ये भी रेडियस ही है, फिर ये ऐसे स्फीयर है तो ये भी रेडियस ही है। नाउ सी पी इज आर, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू आर, सी डी भी फिर आर है। नाउ मैं एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या होगी देख लो। आई विल पुट अ परपेंडिकुलर हियर, मैंने एफ, चलो जी कहेंगे, पुट एफ जी परपेंडिकुलर टू ऑन सी डी। तो ये इस ट्रायंगल को दो हाफ हिस्सों में बांटेगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के मिड पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर पड़ेगा तो वो दो ट्रायंगल्स को इक्वल हिस्सों में बांटेगा। सो दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल और ये एंगल और ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। इफ दिस इज आर, ये परपेंडिकुलर इस साइड के हाफ पे पड़ा, तो सी जी कितना होगा, इट विल बी आर बाई 2, इट विल बी आर बाई, एंड जी डी इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू आर बाई 2, क्योंकि इस साइड, ये साइड जो है ये आर के बराबर है, सी डी आर के बराबर। परपेंडिकुलर जो हमने डाला ये इस साइड के मिड पॉइंट पे पड़ा है, पॉइंट जी पे पड़ा, तो ऑब्वियसली ये सी डी जो डिस्टेंस है इसको हाफ कर लेगा, हाफ ऑफ आर यहाँ हो जाएगा, हाफ ऑफ आर यहाँ हो जाएगा। सो सी जी इज आर बाई 2, जी डी इज आर बाई 2। क्लियर? नाउ लुक एट हियर, मैं एक ट्रायंगल निकालूंगा, कौन सी वाली ट्रायंगल, इसको मैं अलग कर लूंगा, इन ट्रायंगल सी जी एफ, सी जी एफ ट्रायंगल को गौर से देखो, सी जी एफ, इट इज लाइक दिस। This is angle I, okay, this is 90 degree, this is C, this is G, this is F. How much is this? This is R upon 2, R upon 2। CF कितना है, चलो CF देख लेंगे अभी। CF let's suppose it's T, CF की डिस्टेंस T मान लेंगे फॉर इंस्टेंस, CF की डिस्टेंस कितनी मानी, T। अब यहां से हम निकालेंगे cos I और cos थीटा, cos I बताओ कितना होगा। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। cos I कितना होगा, यहां से देख लो यहां कितना होगा। cos किसके बराबर होता है, b अपॉन h, b अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बी, बेस इज r by 2 divided by t, divided by t, or we can write this as cos of I will be equal to r divided by 2t, r divided by 2t। how much is this t? t को निकालेंगे, t को निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे,
T will be equal to R upon 2 cos of I. cos of I यहाँ पे एंगल है, I यहाँ पे क्या है, एंगल है, ये चीज याद रखना। I here it's an angle. Here it becomes T is equal to R upon 2. Here it's 1 by cos I. 1 by cos कितना होता है? That is sec. 1 by cos कितना होता है? sec होता है। तो हम लिखेंगे sec थीटा और sec I. Now f is equal to, ये f किसके बराबर होगा? This will be r, total r. ओके, ये सारी डिस्टेंस माइनस ये वाली इसमें माइनस कर लेंगे t. f will be r minus t. r minus t. Now look here, f is equal r, t का वैल्यू it's r by 2 sec I. sec I. Now if angle I is nearly equal to 0, if angle I is nearly equal to 0, condition है ये, if angle I is nearly equal to 0, then मुझे बताओ cos I कितना होगा? cos 0 कितना होता है? 1. सो अगर इस I को वैल्यू 0 देंगे तो ये cos 0 हो जाएगा। cos 0 इज 1, तब ये 1 के बराबर हो गया। सिमिलरली sec I कितना होगा? दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1, क्योंकि sec इट्स इनवर्स ऑफ cos, इट्स इनवर्स ऑफ, तो 1 है तो ये भी 1 रहेगा। अब क्या बन जाएगा? f इज इक्वल टू r माइनस r बाई 2। sec I इज 1, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग sec I इज, तो ये 1 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी f इक्वल टू? f विल बी r माइनस r बाई 2 विल बी r बाई 2। This is a relation between r and f. Here this is the condition. If angle I is so small, if angle I is so small, angle I small कब होगा? angle I small कब होगा? जब ये इंसिडेंट रे नियर अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस के होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होगी, तब ये एंगल आई स्मॉल होगा, तब ये एंगल आई स्मॉल होगा। एंड व्हाट वी कॉल दैट? वी कॉल पैराएक्सियल रेज। तो जब इंसिडेंट रे जो होंगी वो पैराएक्सियल रेज होंगी, तब एंगल आई स्मॉल होगा। सो पैराएक्सियल रेज कब पड़ेंगी? इस पे मिरर पे हम कह सकते, जब मिरर छोटा होगा, अपर्चर ऑफ मिरर स्मॉल होगा, तब एंगल आई 0 होगा, नियर अबाउट 0, नियर अबाउट 0, तब एंगल आई 0 के नजदीक होगा, तब ये रिलेशन है। वरना असल में रिलेशन जो है ये है, असल रिलेशन जो है ये है। ये पैराएक्सियल के लिए भी रहेगा, ये मार्जिनल रेज के लिए भी रहेगा। बट हम जो कंडीशन लेके आए ये वाली, ये कंडीशन, यहां से हमने क्या निकाला? r बाई 2, r बाई, दैट मीन्स ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन उन मिरर्स के लिए है जिनका अपर्चर स्मॉल है, which are having small aperture। तो ये रिलेशन है। आज तक हम यही पढ़ते आए हैं। इसका ये मतलब है कि हम जो एज्यूम करते थे स्फेरिकल मिरर्स, उनका अपर्चर वो स्मॉल है, वो क्या है? स्मॉल है। सो ये रिलेशन बन जाती है। आई थिंक इट्स अंडरस्टूड नाउ